Hello friends, as we were saying that physical properties of metals, now we will see at a glance first what are the physical properties of non-metal, which is exactly opposite of non-metals. When we will talk about physical state, luster, brittleness, ductility and malleability all together, conduction of heat and electricity together, density, melting and boiling point, and metalloids. Now metalloids is something new for you. So let's talk about physical states. So in metal, if you remember, in metals, the it is solid, but only very few are liquid at room temperature, which is mercury and gallium. But over here, at ordinary temperature, non-metals occur as solids, liquids, and gaseous. For example, solids are your carbon, sulfur, phosphorus, and liquids are chromium. Gaseous are your hydrogen, nitrogen, oxygen. All right. So over here, non-metals do occur in three states as well, which is solid, liquid, and gaseous. Now, luster. Non-metals do not have luster, but on the contrary, metals have luster. Except diamond and iodine crystals, non-metals do not have this luster. Diamond, again, I'm saying you, whether it is still solid, but then most of you must have been thinking that because it is hard and shiny, it must be a metal. But no, that's an exceptional. Carbon is a form of carbon is carbon, and carbon, when it is pressurized, it becomes diamond, and when the crystal is being given some shape and cuts, then it becomes diamond. And also iodine crystals. Some nonmetals are colorless while others have different color. What is the color of carbon in the form of coal? Obviously it is black. Sulfur is yellow and bromine is brown. Now we will talk about brittleness. So on the contrary, metal was very hard, right? But only phosphorus, potassium, they were soft. Over here, the take coal and hammer it, see what happens to it. So sodium, sorry, it's not phosphorus. So solid nonmetals are brittle, some nonmetals are soft. Diamond is an electrode of carbon, that means it is a form of carbon. It has the same chemical property, but physical property is different. And it is an allotrope of carbon, so it is an exception, which is the hardest natural substance, one of the hardest natural substance. Ductility and malleability, when we talk about, so non-metals are neither ductile nor malleable. And let's talk about conduction of heat and electricity. So non-metals are bad conductor of heat and electricity except graphite, which is again allotrope of carbon and which is very good conductor of electricity. Density, yes, obviously it is opposite of metal, so it has low density. And melting and boiling point, so metal have low melting and boiling point. Exceptions are again there, that is solid non-metals, carbon and boron melt at very high temperature, diamond also. So metalloids are, now the mixture of metals and non-metals are called as metalloids. Okay, so some elements such as arsenic, silicon, germanium, antimony have properties which are intermediate between metals and non-metals. Such elements are called as metalloids. So there are, again I am going to take some activities also now. In that activities I am going to talk about these metalloids, and some activities will be given to you on based on the metalloids as well. So now chemical properties of metals. So now from physical property we are going to see the chemical properties of metals. So electronic configuration, which we have talked about in the earlier chapter, again we have to see in this chapter. Why? Because chemistry is fully depend upon your first 20 elements in a sequence, which I am requesting you again and again to do, right? So electronic configuration is the basic of chemical behavior of elements. मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. तो हमने जब बात की थी किसी भी मेटल के बारे में, तो वहाँ पे हम क्या देखते थे कि उनकी जो वैलेंसी है उस पर डिपेंड होता है किसी भी मेटल का नेचर. ठीक है, अब बात करते हैं हम इस चीज़ की. ये है हमारे पास एक टेबल जहाँ पे मेटल्स है सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, विच इज़ 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम एंड 13 एल्यूमिनियम. एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर है 11 सोडियम का, 12 है मैग्नीशियम का एंड 13 है एल्यूमिनियम का, राइट. अगर आपने कन्फिग्रेशन याद किया है तो आपको ये पता है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि क्या, कि आप कैसे इन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो उनके पर्टिकुलर शेल में. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट शेल है आपका K, सेकेंड है L एंड थर्ड है M. तो इट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो. तो पहले शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्या, एकोमोडेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसका लिमिट है 2.
सेकेंड शेल का 8 और लास्ट शेल का भी हम मान के चलते हैं कि उसमें 32 है, पर फिर भी हम 8 मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेट, राइट, कि मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए बाहरी शेल में, तभी वो मेटल है वो नोबल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सकता है, जिसकी वजह से वो एटम स्टेबल हो जाएगा। और हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, जो जिसे हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं, स्टेबल एटम जिनके शेल कम्प्लीटली फिल होते हैं उनको हम नोबल मेटल कहते हैं। हम उसकी भी बात करेंगे आगे। तो पहले ध्यान से देखिए 281, 282 एंड 283। तो लास्ट शेल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2 और एल्यूमिनियम का 3। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले हमारे वीडियो में कि अगर लास्ट में 1 है या 4 से कम है अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लास्ट के शेल में, दैट इज़ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है तो फिर हम वो जो हमारा मेटल होगा वो क्या करेगा, उसे लूज़ कर देगा कि एक्सेप्ट करेगा, उसे वो लूज़ कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो रिलीज़ कर देगा, तो वो खुद बन जाएगा पॉजिटिव। तो कौन सा आयन बन जाएगा, कैट आयन बन जाएगा। सो ये जो मेटल्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, दे टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। सो 28 28 28 ऐसा करने से क्या होगा, वो जो एटम है जो हमारा मेटल है वो हमारा स्टेबल बन जाएगा। सो 28 यानी कि अगेन फर्स्ट शेल भी कम्प्लीटली फिल है, दूसरा शेल भी कम्प्लीटली फिल है, राइट। अब फॉर्मेशन ऑफ आयन बात करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कैटायन और एनायन के बारे में। तो यहाँ पे आप प्लीज़ ध्यान से देखिए इस बात को कि जब हम बात करते हैं हमारे एटम के फॉर्मेशन की, आयन की फॉर्मेशन की, तो मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसे हम कैट आयन कहते हैं। इसे बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान देना कि कैट आयन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। और जब कोई भी जो हमारा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनेगा, ऑब्वियसली जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, रिलीज़ कर देगा। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, हाँ यहाँ पे 281 है, राइट। तो 281 में क्या होगा, 2 है, 8 है, 1 है। अब लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 बैठ सकते हैं, तो वो 7 को एक्सेप्ट करेगा कि 1 को रिलीज़ कर देगा। कौन सा आसान है, ऑब्वियसली 1 को रिलीज़ कर दो, क्योंकि 7 और लोग आ जाएंगे यहाँ पे तो जगह कम है ना। तो हम क्या करते हैं, हम वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है हम उसे रिलीज़ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, 281 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है हमारा, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 and 8। तो वो जो इलेक्ट्रॉन, वो जो एटम होता है वो प्लस बन जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम के साथ भी ये होता है कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसे वो रिलीज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास सपोज हमारे पास है किसी भी एटम में 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 2, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन हमारे पास अभी भी 12 है, तो कितने एक्स्ट्रा हैं, 2। तो हम उसे ऐसे मेंशन करेंगे, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। क्या एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन। अगर 2 एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन तो हम माइनस में ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम में 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्लस प्लस। दिस इज हाउ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर बिकमिंग पॉजिटिव anion which is पॉजिटिव आयन विच इज कैटायन। सो अभी हम बात करते हैं इन्हीं मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विथ एसिड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। जैसे हम बात करेंगे अपने एटम्स के बारे में, तो मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। क्या बनता है, ऑक्साइड। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल ऑलवेज गिव यू मेटल ऑक्साइड, ऑलराइट। द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, याद रखना बेसिक होता है, okay, and metal oxides react with an acid to form salt and water. So metal oxide plus acid will give you salt and water. यहाँ पे is equal to आना चाहिए, is equal to salt and water, right। अब बात करते हैं एसिड की। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है, और जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आ रहा है। डिफरेंस सिर्फ हाइड्रोजन गैस का है और वाटर का है। जब मेटल हमारा
मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट डायरेक्टली नहीं करता है, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड बनता है। तो वो मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, और जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट मिलता है। हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में और आपके आने वाले समय में भी। बस आपको अभी फ़िलहाल ये याद करना है कि मेटल ऑक्साइड विल प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, एंड मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इतना ही आपको याद रखना है बस, और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रिएक्शन विथ वाटर, अगर हम मेटल को हम रिएक्शन करेंगे वाटर में अगर हम रखेंगे तो रस्ट फॉर्मेशन होता है बेसिकली। जब आप देखते हो जो लोहे का दरवाज़ा होता है वो भी बारिश के मौसम में वो जंग पकड़ने लगता है, राइट। So most metal do not show any observable and fast reaction with cold water, but some metal like sodium and potassium react with cold water to produce their hydroids and hydrogen gas. Magnesium metal requires steam to give similar reaction. बेसिकली ये जो आयरन है हम बात भी करेंगे अगर वाटर के साथ, तो वाटर के प्रेजेंस की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन अगेन गैसियस में होता है, मतलब कंसीडर किया जाता है। लेकिन पानी के साथ बेसिकली मेटल का इतना रिएक्शन नहीं है जितना एक्सेप्शन जो केस है वो है हमारा पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम सोडियम को अगर आप पानी में डालोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है, लेकिन इसे इन दोनों में देखा जाता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम मेटल्स के बारे में रिवाइज करते हैं। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले कि वो पानी से इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम ये दोनों बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। पानी अगर मेटल ऑक्साइड हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, लेकिन अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का। और ऑल्सो मेटल क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं तो वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, कैटायन बन जाते हैं। पर नॉन मेटल में क्या होता है, क्योंकि उनके पास 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंसी उनकी ज़्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये जो रिलीज इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मेटल जो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो खुद नेगेटिव आयन बन जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एनायन। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगेन हम उसकी बात करनी है। सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं इनके वैलेंस शेल के, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते हैं बल्कि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का 8 एंड क्लोरीन का 17। तो अगर आप बात देखते हो तो 2 and 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, 2 and 6 है, 8 नहीं है, एंड 2, 8 and 7 है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हम उसे कंसिडर करते हैं, तो इट इज़ 5, 6 and 7। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, ये भी ऐड कर लेगा, ये भी ऐड कर लेगा। तो अगर हमने किसी इन तीनों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन, जिसे हम एनायन कहते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ आयन, नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज एनायन। जहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है तो 7 से वो 8 बन रहा है, तो इट इज़ बिकम क्लोराइड आयन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम बात करते हैं एडिशन की, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है तो हम कितना, अगर एक ऐड हो रहा है तो ऐसे लिखेंगे, 2 ऐड हो रहा है तो ऐसे लिखेंगे, 3 ऐड हो रहा है तो ऐसे लिखेंगे। वही बात जब प्रोटॉन्स की थी तो हम एक लिखते थे, अगर एक रिलीज़ हो रहा है अगर इलेक्ट्रॉन तो हम एक लिखते थे ऐसे, रिलीज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन 2 तो ऐसे, 3 ऐसे जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं। जब एक्सेप्ट हो रहा है तो हम माइनस लिखते हैं, रिलीज़ हो रहा है तो हम प्लस लिखते हैं। ये तो उल्टा हो गया ना, जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो प्लस लिखना चाहिए हमें, और जब रिलीज़ हो रहा है तो नेगेटिव लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम प्लस और माइनस इस चीज़ के लिए नहीं लिख रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कितना जा रहा है, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ। जब रिलीज़ होगा तो ऑब्वियसली प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा, जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। तो ये हमारा जो है नेगेटिव साइन प्रेजेंट करता है, हमें बताता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और आपका पॉजिटिव साइन दिखाता है हमें कि कितने प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ वाई आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो sorry, yeah, so yeah, over here,
सो क्लोरीन इज 27287, तो एक प्लस होगा तो 28 बन जाएगा। 26 है, दो दो अगर इलेक्ट्रॉन वो ऐड करेगा तो 28। 25 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे तो इट विल बी 8। सो इट इज क्लोराइड, क्लोरीन विल बिकम क्लोराइड आयन, oxygen will become oxide ion, nitrogen will become nitride ion respectively. Now reaction with oxygen, non-metals combine with oxygen to form oxide. Non-metals plus oxygen will give you non-metal oxide. Metal plus oxide will give you metal oxide. So the oxide of non-metals are acidic in nature, बल्कि metals में क्या था, oxide of metals are basic in nature. So they react with bases to form soluble water and salt. यहाँ पे हम जैसे देखेंगे कि कार्बन है आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस के साथ जब रिएक्ट होगा द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड। जब वो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिल रहा है, एसिड, विच इज सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड। आपका अगर आप बाद में देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड जब वाटर से मिलता है तो हमें सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। देखो इक, जब भी इक लग रहा है, ये इक का फॉर्मेशन है आई सी, यानी कि आपका जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो आपका जो है वो ज़्यादा है अस में, और जब हम सल्फर की बात करते हैं तो O3 कम है तो OU आएगा, O4 ज़्यादा है तो इक आएगा। So this is also one of the point which you have to remember, but yes, it is not right now in your syllabus, but in 9th standard we will study this also in complete detail. Now, non-metal do not react with dilute acid. Non-metal do not react with dilute acid. Metal dilute acid के साथ react करते थे तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था salt and hydrogen gas। लेकिन नॉन मेटल जो है हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब बात करते हैं नोबल मेटल की, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि नोबल मेटल का मतलब क्या है। नोबल मेटल यानी कि वो मेटल जो स्टेबल है, यानी कि उनका कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट शेल में है, यानी कि वो 288, ये कॉन्फ़िगरेशन जिस भी मेटल में आपको दिखाई देगा इट इज़ कॉल्ड एज नोबल मेटल। क्यों? बिकॉज लास्ट शेल कम्प्लीटली फिल है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव। या फिर आप बात कर सकते हो कि 28 भी अगर दिखाई दिया तो भी वो हमारा नोबल मेटल है। सिर्फ हमें 2 भी दिखाई दिया तो भी वो हमारा नोबल मेटल कहलाया जाएगा। सो हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, उसका जो शेल होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है KLMNN शेल का, तो फिल है कम्प्लीटली, तो दिस इज ऑल्सो नोबल मेटल। हीलियम, सॉरी इट इज़ हाइड्रोजन, इट इज़ हीलियम। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलाडियम, रोडियम आर नोबल मेटल। देखो नोबल मेटल जो है वो हमारे महंगे भी बहुत होते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो नोबल मेटल होते हैं वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, प्लस ये धरती पे बहुत ही कम पाए जाते हैं। जो चीज़ ज़्यादा है जैसे सिलिकॉन, जैसे कि यानी कि सैंड, वो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं सिल्वर, गोल्ड की, प्लैटिनम की, तो ये बहुत कम है, इसलिए मांगे ज़्यादा है। तो मांग ज़्यादा है क्योंकि वो कम है, इसलिए उसका रेट ज़्यादा है। सो दे ऑकर इन नेचर इन द एलिमेंटल स्टेट। गोल्ड विच इज़ 100% प्योर इज कॉल्ड एज 24 कैरेट गोल्ड। प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट। तो अभी जो आप देखते हो अगर मम्मी सोना वगैरह पहनते ही होगी, अगर वो प्योर गोल्ड है तो थोड़ा सॉफ्ट होता है। लेकिन अभी 22 कैरेट का क्या होता है, उसमें थोड़ा सिल्वर मिला देते हैं, जिसकी वजह से उसको शेप, गोल्ड को शेप देने में काफ़ी मदद हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट द ऑर्नामेंट मेड फ्रॉम प्योर गोल्ड बेंट और ब्रेक ड्यू टू प्रेशर। देयरफॉर गोल्ड स्मिथ मिक्स इट विथ सर्टेन proportion of copper or silver. Ornaments are made from 22 carat gold or gold with still small carat value. Alright. तो ऐसा भी होता है कि जो आपके गोल्ड है वो 22 कैरेट का भी होता है। डू यू नो देर इज़ अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द सी नियर न्यूयॉर्क सिटी इन द अमेरिका। अब क्योंकि वो सी में ही है तो कितना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और ह्यूमिडिटी की वजह से तो आपको पता है कोरोजन होता है। कोरोजन मतलब कि मेटल का ऑक्साइड में कन्वर्ट होना और सॉल्ट में कन्वर्ट होना। सो द ओरिजिनल सरफेस ऑफ दैट स्टैचू वॉज मेड अप ऑफ कॉपर, बट नाउ इट लुक्स ग्रीन। जैसे आप देख सकते हो पूरा ग्रीन है, लेकिन पहले वो कॉपर ब्राउन होना चाहिए, लेकिन अब वो ग्रीन हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। So this is because green colored copper carbonate has been formed by a reaction of copper with the carbon dioxide and moisture in the air, and this is an example of corrosion.
Uses of noble metals. Gold, silver and platinum are used to prepare ornaments. Silver used in medicines, it has antibacterial property. एंड जैसे आपने सिल्वर क्लोराइड करके एक मेडिसिन भी आती है, जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसे लगाने के लिए भी दिया जाता है, बिकॉज सिल्वर और गोल्ड एंटी बैक्टीरियल। आपको पता है पहले ज़माने में राजाओं की थालियाँ सोने और चांदी से बने होते थे, उनको खाने के लिए भी सोना चांदी देते थे, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल्स. Gold and silver also used to make new electronic devices. Platinum, palladium metals are also used as a catalyst. प्योरिटी ऑफ गोल्ड की बारे में बात करें तो अगर 24 कैरेट गोल्ड है तो यानी कि वो प्योर गोल्ड है, राइट. 22 कैरेट गोल्ड है यानी कि उसमें थोड़ा सा सिल्वर और आपका कॉपर मिलाया हुआ है. जिस क्यों मिलाते हैं हम, बेसिकली बिकॉज जो गोल्ड होता है, वो प्योर जो गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसको शेप नहीं दे सकते, इसीलिए हम थोड़ा सा कॉपर और सिल्वर मिलाते हैं. तो यहाँ पे हम कैरेट हैं 24 कैरेट है. देखो ये कैरेट यानी कि हम गोल्ड की प्योरिटी कैरेट्स में नापते हैं, और अगर आप कोई भी गोल्ड खरीदने जाते हो तो आप ये मार्क चेक करते हो. 24 कैरेट यानी कि 100% गोल्ड. 22 यानी कि 91.66. बाकी का जो परसेंटेज है वो कॉपर नहीं तो फिर सिल्वर से होगा. वैसे ही 10, 12, 14, 18 कैरेट्स के भी आपको गोल्ड मिलते हैं, लेकिन उनकी प्योरिटी जैसे ही आप देखोगे कम 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 होती जाती है. नाउ कोरोजन, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट कहा था कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो ग्रीन कलर की हो रही है, बिकॉज कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हो रहा है, राइट. कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है. तो ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे मॉइस्चर है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, क्योंकि वो नदी के वो एक समंदर के बीच में, राइट. सो गैसेस इन द एयर रिएक्ट विथ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म मेटल कंपाउंड्स. The metal get affected by the process of undergoing a reddish color deposit in the form of iron on iron by reaction with oxygen gas. जैसे मैंने कहा था, जब लोहे का जो दरवाज़ा है या कुछ भी चीज़ें हैं, खासकर बारिश में आप उसे पेंट कर दो तो ठीक है, वरना एक रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे हम रस्ट कहते हैं. सो अ ग्रीनिश कलर्ड डिपॉजिट इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर बाय रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो अगर आयरन की बात करें तो रस्ट फॉर्म हो जाता है. दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोरोजन, यानी कि जो आपका मेटल है वो ऑक्साइड हो रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है. कॉपर किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर रिएक्ट करता है तो वो ग्रीन कलर का बन जाता है. अ ब्लैकिश कलर डिपॉजिट इज फॉर्म्ड ऑन सिल्वर बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को हम कहते हैं कोरोजन. तो कोरोजन को हम मेटल से बचाने के लिए क्या करेंगे. वैसे पहले मेटल को बचाना ही क्यों है, बिकॉज ये जो मेटल्स हमारे घर में होते हैं वो उसका एक यूज़ है, राइट. अगर हम मेटल को ऐसे ही छोड़ देंगे, दरवाजे को पेंट ही नहीं करेंगे आयरन का, तो वो धीरे धीरे करोजन की वजह से वीक हो जाएगा, और आप थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका दरवाज़ा टूट जाएगा. और यही आयरन जब आप मार्केट में ख़रीदने के लिए जाते हो तो बहुत महंगा भी आता है, तो आपको उसे मेंटेन करना पड़ता है. तो आप इस कोरोजन से आप कैसे बचाओगे इस मेटल्स को, बिकॉज कोरोजन की वजह से आपका जो प्योर मेटल होता है वो ख़राब होता है. तो आप उसे ऑयल पेंटिंग, मतलब उसको पेंट करा सकते हो, लेयर ऑफ ऑयल लगा सकते हो उसके ऊपर, वार्निश एंड पेंट आर अप्लाइड ऑन देम. ऑल्सो प्लेटिंग विथ अनदर नॉन कोरोडिंग मेटल इज डन. मतलब कि आयरन अंदर रहेगा लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा मेटल रहेगा जो ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसे जो रिएक्टिव गैसेज है, सल्फाइड गैसेज, उससे रिएक्ट ही ना करें. ठीक है. सो आयरन इज अरेस्टेड बाय जिंक प्लेटिंग. आयरन के ऊपर एक जिंक का लेयर लगा देते हैं, जिसकी वजह से आयरन जो अंदर प्रेजेंट होता है, उसके जो अंदर आयरन है वो बाहर के सराउंडिंग से कैसे भी कांटेक्ट में है ही नहीं. क्यों, बिकॉज उस आयरन के ऊपर जिंक लगा दिया है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. सो ड्यू टू दीज प्रोसेसेस द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस विथ एयर इज लॉस्ट एंड कोरोजन कैन नॉट ऑकर एज द केमिकल रिएक्शन कैन नॉट ऑकर, एंड दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन. लास्ट है बात अलॉय की, बिकॉज हम बात कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल. सो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ metal with non-metal is called as alloy. Alloy are made by mixing the constituent elements in as per the requirement. For example, the stainless steel utensils used at home are made up of an alloy of iron with carbon, chromium and nickel, and the alloy bronze is also formed फ्रॉम टिन एंड कॉपर. अब हम एलॉय क्यों हमें चाहिए, जैसे हम बात कर रहे थे कोरोजन की. अगर हमने प्योर कॉइन्स है हमारे पास, जो पैसे हैं ना हमारे पास, वो हमने आयरन के रखे सपोज या कॉपर के रखे,
तो अभी देखो जो हमारे पास कॉइन्स हैं, जो हमारे दादाजी के भी दादाजी यूज़ किया करते थे, अगर आप कलेक्ट करते हो कॉइन्स तो वो वैसे के वैसे ही है। क्यों? बिकॉज वो जो हमने मटेरियल यूज़ किया है उस कॉइन को बनाने के लिए, और वो ना ही ऑक्सीजन, जो भी गैस प्रेजेंट होती है सराउंडिंग में, चाहे वो मॉइस्चर हो गया या कोई भी गैस होगी रिएक्टिव, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी हो गया, वो उस कॉइन के मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? बिकॉज वो हमने क्या किया है, वो इट्स एन एलॉय, इट्स नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ एनी मेटल, नीदर कॉपर नीदर आयरन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे दो मेटल को साथ में ले रहे हैं जिसके कॉम्बिनेशन से उसमें कोरोजन नहीं दिखाई देगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हमें दोनों मेटल के प्रॉपर्टीज़ मिल जाते हैं, तो हमें बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए अलॉय इज़ यूज्ड। सो कॉपर है, कॉपर को हमने किसी टिन से मिला दिया तो हमें ब्रॉन्ज मिलेगा, और ये ब्रॉन्ज बिकॉज इट इज़ एन अलॉय, इट इज़ द चांसेस ऑफ गेटिंग कोरोजन इज़ वेरी लेस, इट गेट्स मिनिमाइज्ड। सो अलॉय का आप कहाँ हमारे कहाँ आप डेली लाइफ में इसके यूज़ देखते हो, या कहाँ आप हिस्ट्री में इसका यूज़ देखते हो? सो डू यू नो देयर इज़ एन आयरन पिलर इन दी प्रेमाइसेस ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली, मेड अबाउट 1500 ईयर अगो। हाँ, अब आयरन का जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्योर आयरन का वो अगर पिलर है तो क्या होगा, वो तो करोजन की वजह से पूरी तरीके से ब्रिटल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज द पिलर इज लस्ट्रस इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, दिस इज बिकॉज अवर एंसेस्टर हैड मेड इट फ्रॉम एन अलॉय। आयरन का बना हुआ है, लेकिन उसमें मैग्नीशियम और जिंक का भी प्रोपोर्शन है, स्मॉल स्मॉल प्रोपोर्शन में, कार्बन सिलिकॉन फॉस्फोरस भी है। अभी तक इसे क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली कौन कौन से मेटल्स उसके साथ मिक्स किए हुए हैं। तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल विद अ नॉन मेटल इज कॉल्ड एज अलॉय। तो ऐसा कौन सा प्रोपोर्शन है जिसकी वजह से आज भी वो पिलर वैसे का वैसे ही है, और साथ में वो जो चमक है वो भी आज भी बरकरार है उस पिलर में? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द नॉलेज, एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अलॉय, presence of alloy. Do you all know a cheap variety of stainless steel is made sometimes by using copper instead of costly nickel? You might have seen the vertical cracks in stainless steel vessels. The reason is in the above. Also, you might be knowing scrap dealers. What do they do with the scrap? Why it this needed? तो scrap भी हमें alloy बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि वो scrap छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, उसे मेल्ट करके किसी और के साथ, किसी और मेटल के साथ मिलाना ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमें अलॉय मिलता है। और ये अलॉय की एक डिफरेंट ही प्रॉपर्टी होती है, ना ही टोटली अगर हमने कॉपर और जैसे टिन को मिलाया है तो वो ना ही पूरी तरीके से कॉपर ही होगा, ना ही पूरी तरीके से टिन होगा, पर इन दोनों के मिक्सचर की वजह से हमें एक तीसरी नई प्रॉपर्टी मिलती है उस सब्सटेंस की, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, जैसे कि ब्रॉन्ज। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी चैप्टर. I hope that you have understood this chapter, and again I'm telling you, please read the previous chapter with all the table. Please continue, just keep on revising first 20 elements, because I am going to give you certain activities based on that once we are done with this syllabus. All right, so just take care.